Assalamu alaikum everyone. Today we are going to see simple linear regression and correlation. These are two concepts that are quite interrelated to each other. Simple linear regression is more or less like an extension of correlation. However, remember that correlation is a measure of degree of relatedness of variables, whereas regression analysis is more or less like the cause and effect relationship. So always remember, correlation does not always imply causation. There's a difference between correlation and causation, and that's the difference between correlation analysis and regression analysis. So the uses of regression analysis are various in especially business and industry. You need to ask if there's a relationship between amount health tax spends per month on advertising and its sales in the month. Can we base an estimate of the cost to heat a home in January on the number of square feet in the home? Is there a relationship between the miles per gallon achieved by large pickup trucks and the size of the engine? Is there a relationship between the number of hours that students studied for exams and the score earned? Remember, we are talking about statistically significant cause and effect relationships when we are talking about regression. Whereas correlation analysis is the study of relationship between variables. It is also defined as group of techniques to measure the association between two variables. So when we are talking about correlation, we are talking about degree of relatedness of variables. It can help a business researcher determine, for example, whether the stocks of two airlines rise and fall in any related manner. So there are several measures of correlation available. The selection of which depends mostly on the level of data that you are going to analyze. Ideally, researchers would like to solve for the correlation coefficient, the population coefficient of correlation, which is uh, actually representative of the relatedness of variables. However, because researchers virtually always deal with sample data, this section is widely using coefficient of correlation R. So we can use rho or we can use R. Because we are using sample data mostly, we usually go with R. And then when we are squaring this R square, that is the coefficient of determination. So statistic is always relevant to the sample. If you remember, the statistic R is the Pearson's product movement correlation coefficient. It was named after Carl Pearson, an English statistician who developed several coefficients of correlation, along with other statistical concepts as well. So this term R is the measure of linear correlation of two variables. Now remember, this is the statistic R that we are talking about. We are not talking about the population parameter of correlation, which is rho. We are not talking about that. So for the purpose of this discussion, we would be going on with R only. You can use a scatter diagram also. This scatter diagram is a chart that portrays the relationship between two variables. It is the usual first step in correlation analysis. The dependent variable is the variable that is being predicted or estimated, and the independent variable provides the basis for estimation. So independent variable is the predictor variable. If we look at the example of regression, the cause and effect relationship, a sales manager of Copier Sales of America, which has a large sales force throughout the United States and Canada, wants to determine whether there is a relationship between number of sale calls made in a month and the number of copiers sold per month. The manager selects a random sample of 10 representatives and determines the number of sale calls each representative has made last month and the number of copiers sold. So if you remember, we have taken this example, we have discussed it before, taking this example from Lyndon Marshall, Statistics by Lyndon Marshall. So इस एग्जाम्पल में 10 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का सैंपल है और उनके नंबर ऑफ कॉल्स लिए गए और देखा गया कि उन्होंने कितने कॉपीज सेल आउट किए तो हम यहाँ क्या देखना चाह रहे हैं अगर तो सिर्फ सिंपल कोरिलेशन होगा तो हम ये देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स और नंबर ऑफ कॉपीयर्स दोनों के दरमियान किसी तरह की कोई रिलेटेडनेस मौजूद है या नहीं है दोनों के दरमियान किसी तरह का कोई मूवमेंट मौजूद है कि नहीं है उनकी डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की उनमें
किसी तरह का कोई ताल्लुक या एसोसिएशन है या नहीं। तो ये सिंपल कोरिलेशन है। और अगर हम ये देखना चाहें, क्या नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स एक कॉज़ हो सकता है जो कॉपियर्स की सेल पे अफ़ेक्ट करे? अगर हम ये कॉज़ और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहें, क्या टेलीमार्केटिंग का असर हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स पे? ये कॉज़ और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम कॉज़ और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे, तो ये कोरिलेशन से आगे की बात है। ये कॉज़ और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप फिर हम रिग्रेशन में देखेंगे। हमने इसका एक स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किया तो हमें ये पता लगा, स्कैटर डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आ सकता है कि ये जो स्कैटर डायग्राम है ये अपवर्ड स्लोप के साथ जा रही है। इसका मतलब सेल्स कॉल्स में और कॉपी और सोल्ड में एक लीनियर रिलेशनशिप मौजूद हो सकता है, और वो पॉजिटिव या डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है कि हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखेंगे, व्हिच इज़ द स्टैटिस्टिक आर, यानी सैंपल के कोरिलेशन की बात हो रही है। इट इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अभी ये रिलेशनशिप की सिर्फ बात हो रही है, हमें ये नहीं पता है कि क्या ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं। हमें सिर्फ ये एक अस्यूम्ड रिलेशनशिप नजर आ रहा है। एट द फेस ऑफ इट हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो एक सेम सिमिलर या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं। तो ये यूजुअली इंटरवल या रेशो स्केल डेटा पे किया जाता है। इट कैन रेंज फ्रॉम -1 विच इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन टू 1 विच इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। -1 और 1 जो है ये इंडिकेट करते हैं परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। और यूजुअली अगर आप सिर्फ दो दो लोगों को ले लें, सिर्फ अगर आप दो वेरिएबल्स ले लें, तो ये आपको परफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन दिखा सकता है। यानी मिनिमम साइज पे आपका परफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव कोरिलेशन आता है यूजुअली, अदरवाइज आपका नेगेटिव या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं आता। जो वैल्यूज जीरो के नजदीक है वो वीक कोरिलेशन को इंडिकेट करती हैं। जो वैल्यूज जीरो से ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है, वो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को इंडिकेट करती हैं। जो वैल्यूज पॉजिटिव है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप को इंडिकेट करती हैं। जो वैल्यूज नेगेटिव हैं वो इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप को इंडिकेट करती हैं। ठीक है। तो हमने हमारा जो एग्जाम्पल था वो, उसमें हमने ये सेकंड ग्राफ के तौर पे देखे कि जो हमारा स्कैटर डायग्राम था वो हमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन शो करा रहा था। जो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होता है वो यूजुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन पे आता है। ये कॉन्टिन्यूम है, उसकी डिग्री का कोरिलेशन की इसमें आप देख सकते हैं कि 0.5 से ज्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन समझा जाता है, 0.5 से कम हो तो वीक कोरिलेशन समझा जाता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को आप इस तरह फार्मूला के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजुअली हम इसको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे रन करते हैं, और हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास ऑल्सो, दैट इज SPSS। तो SPSS पे रन करके आपको बताएंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरह निकाला जा सकता है। पियर्सन्स कोरिलेशन, बाइवेरिएट कोरिलेशन हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक है। जब आप एक दफा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो अगला स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये आर स्क्वायर कहलाता है। इट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन in the dependent variable that is explained or accounted for by the variation in the independent variable, which is the exact definition of a regression model. It is the square of the coefficient of correlation. तो regression model क्या है? रिग्रेशन मॉडल की जब हम बात करें तो इसका कॉज एंड इफेक्ट मॉडल, और ये बताता है कि किसी एक प्रिडिक्टिव वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल पे क्या असर हो सकता है। So regression analysis is the process of constructing a mathematical model of function that can be used to predict or determine one variable by another variable, the simple linear regression, और other variables। मल्टीपल की जब बात करेंगे तो मल्टीपल रिग्रेशन की बात होगी। तो मोस्ट एलिमेंट्री रिग्रेशन मॉडल इज सिंपल रिग्रेशन, जिसको हम बाइवेरिएट रिग्रेशन भी कहते हैं। और जब आपके पास नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं तो फिर हम इसको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं।
जो वेरिएबल जिसकी आप प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है एंड दैट इज डेजिग्नेटेड एज वाई। और जो प्रिडिक्टिव वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी आप स्कैटर प्लॉट यूज कर सकते हैं, और स्कैटर प्लॉट आपको दिखाता है कि आपके इन्फ्रेंसेस किस तरह से प्लॉटेड हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की रेंज भी 0 से 1 तक होती है, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। जाहिर है आर को आप स्क्वायर करेंगे तो उसका साइन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, वो सब पॉजिटिव हो जाएगा। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये नहीं बताता है कि डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है, डायरेक्ट है कि नहीं है। मगर ये जरूर बताता है कि आपके ओवरऑल मॉडल की प्रिडिक्टिव कैपेसिटी क्या है। कोरिलेशन हम इसके अंदर आसानी से निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हम अगर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, कोरिलेशन तो होगा कि नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ कॉपी और सोल्ड का आपस में किसी भी तरह का कोई रिलेटेडनेस उनमें है या नहीं, कोई एसोसिएशन है या नहीं। पॉजिटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन है। अगर हम डेटा को देखें, हमने स्कैटर प्लॉट भी देखा, तो हमें लगता है कि पॉजिटिव एसोसिएशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो दैट इज अबाउट कोरिलेशन। अब अगर रिग्रेशन इस पे फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो रिग्रेशन हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या ये नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स एक ऐसा कॉज है जो किसी हद तक कॉपियर्स की सेल में करामद हो रहा है कि नहीं, कॉपियर्स की सेल को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो जब ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे तो फिर हम रिग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है। आपने देखा, जब आप कोरिलेशन कोफिशिएंट देखते हैं तो उसके मुताबिक आप देखिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक्सेल के ऊपर यूज कर सकते हैं आप इसको एसपीएसएस पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 0.759 आर की वैल्यू आती है, तो 0.759 का मतलब क्या है? इज ग्रेटर देन 0.5 एंड इट इज पॉजिटिव। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप इसको एसपीएसएस पे रन करते हैं तो आपको ये भी बताता है कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं। आप उसको उस तरह से प्लॉट भी कर सकते हैं। फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जब आप रिग्रेशन पे आते हैं तो कोफिशिएंट जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको पड़ेगा 0.576। यानी दिस मॉडल explains the variation, the number of sales calls explains the variation in number of copiers sold by 57.6%। ठीक है। इसका एज नोट क्या होता है? अच्छा, एज नोट जब हम बना रहे हैं, हम पॉपुलेशन कोरिलेशन पे बना रहे हैं। इसका एज नोट होता है कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन इज 0, और चूंकि हमारा पर्पस ये होता है कि हमने एज नोट को रिजेक्ट करना है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगा कि रो इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ। आपको मालूम है कि रिजेक्शन रीजन को कैसे कैलकुलेट करना है टी टेस्ट के लिए। लीनियर रिग्रेशन का सिंपल सा इक्वेशन होता है, y हैट इज इक्वल टू अल्फा बी। आप इसे a से रिप्रेजेंट कर दें, आप इसे c से रिप्रेजेंट कर दें, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। और बेटा इज अ कोफिशिएंट ऑफ द प्रेडिक्टर x। x इज द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट यू आर हैविंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में सिर्फ एक प्रिडिक्टर मौजूद होता है। स्लोप ऑफ रिग्रेशन, स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज। तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? आर एस वाई बाई एस एक्स। एस वाई is standard deviation of y and sx is the standard deviation of x। अब आपको मालूम है, आपको याद होगा कि हम जब s यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, तो बेसिकली हम सैंपल की बात करें। y इंटरसेप्ट में y बार इज द मीन ऑफ y, और x बार इज द मीन ऑफ x। y बार माइनस बीरा x बार से आपका कांस्टेंट या इंटरसेप्ट निकल आता है। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं, हम उसकी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। हमें उसमें कुछ चीजें देखनी है, ये अजम्पशंस भी कहलाती हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। पहला ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स
इज लीनियर। दूसरा ये है कि बोथ वेरिएबल्स मस्ट एटलीस्ट बी एट इंटरवल स्केल के वेरिएबल्स हों, चाहे रेशियो स्केल के वेरिएबल्स ना भी हो, इंटरवल स्केल के वेरिएबल्स हों। फिर द लीस्ट स्क्वायर्स क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डिटरमिन द इक्वेशन। जब इसकी कैलकुलेशन की जाती है तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को यूज किया जाता है इसकी कैलकुलेशन के। अब हम यहाँ पे देखें कि जब इसको रन करते हैं रिग्रेशन को, तो हम इसको रन करते हैं इसकी प्रिडिक्टिव कैपेसिटी के लिए। जैसे आप किसी एक खास पॉइंट पे आप जो रिग्रेशन है उसका अल्टीमेट इज द रिग्रेशन लाइन फिट। उस लाइन का फिट करना आपके लिए जरूरी है। आप उस लाइन पे फिर देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे क्या आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी इफ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पिन पॉइंटेड एट अ सर्टेन लेवल। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम रिग्रेशन में और देखते हैं, ये कैलकुलेशन है रिग्रेशन इक्वेशन की। आपको अभी हमने देखा कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज इसके अंदर हमें और देखनी होगी, और वो जो हमें देखनी होती है वो ये कि क्या हेट्रोस्किडास्टिसिटी तो मौजूद नहीं है। ये एक assumption है, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं रिग्रेशन के, उसके अंदर एक हम ये देखते हैं जब हम मल्टीपल रिग्रेशन देख रहे हैं तो हम मल्टीपल लिनियरिटी की बात करते हैं। अभी क्योंकि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन देख रहे हैं तो हम सिर्फ हेट्रोस्किडास्टिसिटी की बात करेंगे, मल्टी कोलिनियरिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है। तो यहाँ हेट्रोस्किडास्टिसिटी अब क्या है? एक्चुअली जो होना चाहिए फिनोमेना इसमें वो होमोस्किडास्टिसिटी, तो वी आर चेकिंग कि हेट्रोस्किडास्टिसिटी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी मीन वेरिएंसेस हैं वो प्रिडिक्टेड के डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट तो नहीं हो जाती। अगर प्रिडिक्टर की मैक्सिमम वैल्यू हो या प्रिडिक्टर की मिनिमम वैल्यू हो, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू या एक्स की मिनिमम वैल्यू पे आपके मीन वेरिएंसेस चेंज तो नहीं होते। ठीक है, वो स्मूथली सारी के सारे डिस्पर्स्ड है आपके जो एरर टर्म है उसके ऊपर या नहीं। तो हमें ये चीज चेक करनी है, और इसको हम कहते हैं हेट्रोस्किडास्टिसिटी का चेक। तो वो जब हम इसको एसपीएसएस पे रन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हेट्रोस्किडास्टिसिटी किस तरह से चेक की जा सकती है। अब ये आपने यहाँ पे रिग्रेशन लाइन फिट कर दी, पीपी प्लॉट हम देखेंगे, और पीपी प्लॉट के अंदर आपको रिग्रेशन लाइन भी नजर आएगी जब हम इसको एसपीएसएस पे रन करेंगे। आपने फिट कर दी। अब इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट इन टाइम पे देख सकते हैं कि अगर आपके प्रिडिक्टर की वैल्यू एक खास लेवल पे हो तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह रिएक्ट करेगा। यानी प्रिडिक्टर की वैल्यू में, एक्स की वैल्यू में अगर $1 का चेंज आएगा तो या एक यूनिट का चेंज आएगा तो आपके वाई की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। देन वी हैव स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। Standard error of estimate measures the scatter or dispersion of the observed values along the line of regression, कि कितनी ज्यादा डिस्पर्जन है अराउंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन। अगर क्लोज है तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड एरर कम है, और अगर ज्यादा वाइडली डिस्पर्स्ड है तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, आपको मालूम है कि हम अपर कंट्रोल लिमिट में से मीन माइनस करते थे और उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते थे अपना स्टैंडर्ड एरर। इसको n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ कैलकुलेट करेंगे। ये वही assumptions हैं जिनके बारे में अभी पहले बात की थी कि y की values are normally distributed. The means of those normal distribution of y values all lie on the straight line of regression. दूसरा, standard deviations of these normal distributions are equal, यानी variance और standard deviation जो है वो equal है। The y values are statistically independent. This means that the selection of sample of y values chosen for particular x does not depend on anything else। ठीक है, तो स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रोटेक्शन इंटरवल होता है। फिर हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में आप सब क्लियर हैं कि क्या होता है, और प्रोटेक्शन इंटरवल जो होता है उसको आप देख सकते हैं कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई किस तरह से रिएक्ट करे।
The confidence interval reports the mean value of y for a given x, or prediction interval reports the range of values of y for a particular value of x. यानी x की अगर आप कोई भी से आइटरेटिव वैल्यू देना चाहते हैं, आप कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं और फिर देखते हैं कि उसके ऊपर y किस तरह रिएक्ट करेगा या y की वैल्यू क्या होगी, तो उसके जवाब में आपके पास एक रेंज आती है और वो रेंज इंडिकेट करती है कि वाई की वैल्यू इससे इसके दरमियान में हो सकती है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड एरर होगा वो रेंज उतनी बड़ी होगी, जितना स्टैंडर्ड एरर कम होगा वो रेंज उतनी कम होगी। तो दिस वाज अबाउट regression, simple linear regression and correlation analysis. Next, we are going to see how to do simple linear regression on SPSS.